एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर भारत की टॉप ऑटोमोटिव कंपनी में एक कार कंपोनेंट डिजाइन कर रहा है और वो कैड सॉफ्टवेयर यूज करके 3 दिनों की जद्दोजहद के बाद एक परफेक्ट कार कंपोनेंट बनाता है। वहीं अक्रॉस द रोड भारत की एक और टॉप ऑटोमोटिव कंपनी में एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर काम कर रहा है, लेकिन they are using a different system, an AI powered generative design system जो 3 घंटे के अंदर 150 variations of that car component produce करते हैं, all which are cheaper, faster, lighter to produce and can be now put into prototyping to figure कि 150 में से कौन सा component वाकई में काम कर सकता है। ये पायलट प्रोजेक्ट नहीं है, ये वाकई में हो रहा है। मैं इन कंपनीज के नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन I know for a fact that this is happening as we speak। 15 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इस देश के हर साल, 45 लाख वर्किंग ग्रेजुएट्स ऑलरेडी देयर, कंबाइंड मेकिंग इट वन ऑफ द बिगेस्ट वर्कफोर्सेस इन दिस कंट्री एंड इट इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड एवरी सिंगल डे विद एआई। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं या ऑलरेडी एक इंजीनियर हैं, then these 25 minutes are going to hopefully define your life in a positive fashion. How engineering is getting changed by AI. TCS भारत की जो लार्जेस्ट IT सर्विसेज कंपनी है, 6 लाख लोग काम करते हैं वहाँ। 30% of them have gone through some sort of AI training already. एक dedicated AI transformation unit सेटअप हो चुका है। 25,000 engineers have been trained on Azure OpenAI systems. जहाँ competitors jobs कट कर रहे हैं, Infosys इस साल 20,000 freshers को हायर करने की सोच रहा है, क्योंकि उनका AI प्लेटफॉर्म Infi Topaz is delivering 15 to 20% productivity gains. जो Infosys का टॉप प्रोडक्ट है Finacle, that is showing 20% productivity gains through AI. जो complex code हफ्तों लगाता था, अब घंटों में हो रहा है, and debugging is also faster because the code being written is mostly clean. Automobile sector की बात करते हैं, Tata Motors, they are using AI for predictive maintenance. Downtime 35% से कम हो चुका है। महिंद्रा ने component optimization के लिए Gen AI यूज करना शुरू किया है, cutting optimization costs by 20%. मारुति सुजुकी की production lines अब computer vision यूज करती हैं, which have 98% accuracy compared to 85% through humans. DRDO has 452 AI contracts with startups. Center for AI and Robotics, they identified 100 plus AI projects, 40 of them already operational. And सब कुछ, right? Missile guidance systems हो गए, drone swarms हो गए, predictive maintenance for fighter jets हो गया, the entire range. But ये सब ना outcome है। अगर आपको वाकई में देखना है कि काम कहाँ हो रहा है और कैसे हो रहा है, track the money flow. 2025 global AI market is projected to hit about $1 trillion. India का AI market is expected to hit about a $500 billion contribution to GDP by 2030. 11 IITs specialized AI programs offer करती हैं। IIT मद्रास का AI and Data Analytics का BTech प्रोग्राम है, उसमें 23,000 एप्लीकेशंस आई हैं। NITs ने AI करिकुलम लॉन्च किया है JEE के साथ, एंड करीब 2400 ऑल इंडिया रैंक पे NIT सूरत खल कट ऑफ आ रहा है। TCS has allocated $2 billion towards AI development. Pick any IT firm, between 15 to 20% of their R&D investments now are going to be in AI specific projects. And then salaries. Traditional engineers 3.5 से 15 लाख रुपए साल के कमा रहे हैं in the first 5 years of their professional career. वहीं आपके पास engineering plus AI skills हैं, your average goes to 6 to 40 lakh rupees in the first 5 years. अब कौन सी jobs हैं जो maximum risk में when it comes to AI, because they are most likely the ones that are going to get disrupted. CAD operators, it is expected कि 2030 तक 70% of all CAD operators will be automated. Junior software engineers, it is expected that 65% of all junior software engineers will be automated. Test engineers, it is expected that nearly 75% of all test engineers will be automated. अब ये role क्यों? Template based है, तो एक बहुत क्लियर प्रोसेस है जो कि कोड हो सकता है। रेपिटेटिव टास्क्स हैं, तो बार बार सेम चीज करनी है। मैनुअल लेबर विल ऑलवेज बी लेसर देन ऑटोमेटेड लेबर, एंड जजमेंट बहुत कम है। स्टैंडर्ड थिंकिंग प्रोसेस है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, विच इज वाई अ मेजॉरिटी बट नॉट 100%, क्योंकि कुछ काम तो होंगे जहां दिमाग लगेगा, ह्यूमन इंटेलिजेंस सुपरसीड करेगा, बट मोस्ट ऑफ इट इज जस्ट रेपिटेटिव ग्रंट वर्क दैट कैन बी इजिली कोडेड and thus automated. तो टोटल अगर हम ऐड करें, this is equivalent to approximately 2.5 million jobs, मतलब 25 लाख नौकरियां इस देश में which could be at risk because of AI in the next 3 to 5 years. लेकिन कौन सी जॉब्स हैं इंजीनियरिंग के अंदर ही which are relatively safe? डिजाइन आर्किटेक्ट्स, सिस्टम इंजीनियर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, कोई भी ऐसा रोल जिसमें लोग इन्वॉल्व हैं, कॉम्प्लेक्स जजमेंट इन्वॉल्व है,
क्लाइंट रिलेशनशिप्स इन्वॉल्व है, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व है, क्राइसिस हैंडलिंग इन्वॉल्व है, उनको एआई रिप्लेस नहीं कर सकता, कम से कम आसानी से तो नहीं कर सकता। फील्ड इंजीनियर्स, कोई भी ऑन साइट अगर इंजीनियरिंग जॉब है, whether it is in the oil and gas industry, whether it is in the manufacturing setup, those will remain largely safe. Robotics engineers, safety engineers, R&D specialists, consumer facing solution architects, patent attorneys, बहुत wide spectrum है of roles which combine the complexity of human intelligence plus the work that needs to be done. तो आपको ना ये समझना होगा कि jobs evolve कैसे हो रही हैं, transform कैसे हो रही हैं, because बहुत कम jobs completely eliminate हो रही हैं. Jobs तो रहेंगी, the nature of it changes. I always quote a simple example to make this point. किसी टाइम पे हम चिट्ठियां लिखते थे, फिर किसी पॉइंट पे वो टेलीग्राम बन गया, फिर किसी पॉइंट पे वो टाइपराइटर बन गया, फिर किसी पॉइंट पे वो कंप्यूटर टाइपिंग हो गई, किसी पॉइंट पे वो फोन कॉल हो गया, किसी पॉइंट पे वो वीडियो कॉल हो गया, किसी पॉइंट पे वो टेलीपैथी हो जाएगा, हम आंखों से ही बता देंगे कि हम क्या बोलना चाहते हैं. द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन हैज चेंज्ड, बट हैज द नीड ऑफ कम्युनिकेशन चेंज्ड? नो. इंसानों को तब भी बात करनी थी, आज भी बात करनी थी, तब भी एक्सप्रेस करना था, आज भी एक्सप्रेस करना है, तब भी समझाना था, आज भी समझाना है. कम्युनिकेशन एज एन इंडस्ट्री हैज नॉट टर्मिनेटेड, इट एज एन इंडस्ट्री हैज ट्रांसफॉर्म्ड. तो पहले आप शायद न्यूज़पेपर के ऐड बनाते होंगे या टीवी के ऐड बनाते होंगे, आज आप रील्स और शॉर्ट्स बनाते हैं. द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन हैज चेंज्ड, बट द नेचर एंड नीड ऑफ इट रिमेन्स द सेम. दैट्स एग्जैक्टली ट्रू फॉर इंजीनियरिंग एज वेल. कोई भी इंजीनियरिंग का फील्ड कभी भी एलिमिनेट नहीं होगा, उसका काम करने का ढंग वो बदल जाएगा. एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू फिगर. हियर्स एन एग्जांपल. मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आज आप कंपोनेंट डिजाइन करते हैं, सिमुलेशंस रन करते हैं, ड्राइंग्स बनाते हैं, कल ये सब एआई कर रहा होगा, लेकिन डिजाइन स्ट्रेटेजी तो किसी को बनानी पड़ेगी ना, वो आप करेंगे. मैन्युफैक्चरिंग डिसीजंस तो आपको लेने पड़ेंगे, मटेरियल्स पे डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे, कॉस्ट का बजट आपको बनाना पड़ेगा. ये सारी चीजें अब भी जरूरी होंगी, बट the process that you spend a lot of time with may get automated, but the human intelligence required to still arrive at the decision will remain at your level. Software engineers, आज आप कोड लिखते हैं, उसको डीबग करते हैं, उसका QC करते हैं, उसको प्रोडक्शन पे डालते हैं. कल AI ये सब कुछ कर रहा होगा, वो भी कोड लिख देगा, वो खुद ही डीबग कर देगा, वो खुद ही उसको लाइव कर देगा. बट आप आर्किटेक्चर बनाएंगे, आप एज केसेस सॉल्व कर रहे होंगे, आप ऑप्टिमाइज कर रहे होंगे फॉर परफॉर्मेंस, अंडरस्टैंडिंग कि कौन सा मेट्रिक आपके लिए सबसे जरूरी है. सिविल इंजीनियर्स, पहले आप ड्राइंग बनाते थे, उसके नक्शे वो सब एआई बना देगा. आज आप सस्टेनेबिलिटी एक्सपर्ट होंगे, आप ये देखेंगे कि कैसे दिस थिंग कैन होल्ड ट्रू फॉर द नेक्स्ट 100 years विदाउट बीइंग कार्बन नेगेटिव एंड मेकिंग श्योर दैट इट इज सस्टेनेबल, चीपर, फास्टर, बेटर. तो इसके चलते ना एक बहुत इंटरेस्टिंग मूवमेंट हो रही है विच यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम. पहले आईटी, कंप्यूटर साइंस वो एक डिसिप्लिन था, तो लोग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करते थे ताकि वो कोड करें और फिर वो प्रोडक्ट बनाए, और कोई मैकेनिकल करता था, और कोई सिविल करता था, और कोई केमिकल करता था. आज हर एक इंजीनियरिंग डिसिप्लिन को टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन लाना ही पड़ेगा, हर एक इंजीनियर को एक टेक्नोलॉजिस्ट बनना ही पड़ेगा. यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम द फैक्ट कि टेक्नोलॉजी इज नाउ नॉट अ स्ट्रीम और अ डिसिप्लिन एनीमोर, इट इज नाउ द फोर्स बिहाइंड एवरीथिंग दैट मूव्स इन दिस वर्ल्ड. एंड ऐसा हो सकता है कि आपका कॉलेज आपको इसके लिए तैयार ना करे, ऐसा हो सकता है कि करिकुलम अभी भी अपडेटेड नहीं है, ऐसा हो सकता है कि आपने काम करना शुरू कर दिया, आपके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, बट देयर इज नो एक्सक्यूज एनीमोर for you not to learn, because that is the only thing that will make you move forward. तो पाइथन की प्रोफिशिएंसी अब ऑप्शनल नहीं है दोस्त, मैंडेटरी है. चाहे आप जिस भी फील्ड में जो भी काम कर रहे हो, अंडरस्टैंडिंग क्लाउड प्लेटफॉर्म्स वो ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है दोस्त. चाहे आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, डेटा एनालिटिक्स अब ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है दोस्त. चाहे आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, क्योंकि नंबर्स ना झूठ नहीं बोलते हैं. ट्रेडिशनल इंजीनियर्स 3 से 5 लाख रुपए एवरेज सैलरी, एआई स्किल्ड इंजीनियर्स 7 से 8 लाख रुपए एवरेज सैलरी. मिडिल लेवल पे और भी ड्रामेटिक है. Traditional engineers without any technology backing are between 8 to 12 lakhs. Engineers who upskill themselves with AI, with technology are between 15 to 25 lakhs. Senior positions पे आते आते तो अलग ही अंतर आ चुका है. Traditional engineers 15 से 25 लाख रुपए. ये है 15-20 साल के एक्सपीरियंस के बाद. 10 से 15 साल के एक्सपीरियंस बाद ही लोग अगर अपने आप को AI से अपस्किल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का एक इंटरवेंशन ला रहे हैं, they are right now at 35 to 50 lakhs per annum. So what should be your roadmap? 5 चीजें जो मेरे हिसाब से हर एक इंजीनियर को, चाहे आप स्टूडेंट हैं या ऑलरेडी काम कर रहे हैं, करनी पड़ेगी. नंबर 1, डेटा फंडामेंटल्स नॉन नेगोशिएबल है. आपको एडवांस स्टैट्स नहीं करना है,
आपको बेसिक डेटा एनालिटिक्स आना चाहिए। एक्सेल, पावर बीआई, टैब्लू, ये बेसिक सॉफ्टवेयर हैं जिसपे आपको एक एक्सपर्टीज डालनी होगी। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ गुड क्वालिटी ऑलमोस्ट फ्री कोर्सेज और वीडियोस इवन ऑन यूट्यूब दैट कैन गेट यू देयर इन लेस देन 1 वीक। नंबर 2, प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग की सबसे बेस्ट चीज ये है कि अब आपको प्रोग्रामिंग खुद सीखने की जरूरत नहीं है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट कोड, नॉट टू राइट इट बट द लॉजिक विद विच इट इज रिटन। तो चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, केमिकल इंजीनियर है, बायोकेमिकल इंजीनियर है, फर्क नहीं पड़ता दोस्त, आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। It's okay if you use an AI tool to write that code, but what to write, how to think about it, how to structure it, that is the essential logic that you have to learn. Number 3, AI tools, चाहे वो ChatGPT हो, Gemini हो, Claude हो, Perplexity हो, start using it for your day-to-day work, not to create your work, but to elevate your work. To use it as a mentor, use it as a guide, use it as a critic, use it as a coach. उससे सवाल पूछिए, जवाब देने के लिए नहीं, ये पता करने के लिए कि कौन सी चीजें हैं जिसमें अभी भी आपकी खामियां हैं एंड आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो ask like you would ask a teacher. इसमें मैं क्या गलत कर रहा हूँ, इसको मैं कैसे सही और कर सकता हूँ, इसमें कौन सी चीज मैंने कंसिडर नहीं करी है, इसमें कौन सी चीज है जो बहुत बेवकूफी वाली है, जो मुझे समझ नहीं आ रही है, दिख नहीं रही है क्योंकि एक ब्लाइंड स्पॉट है। दिस इज हाउ यू एलिवेट योर वर्क using AI. Number 4, cloud basics. Everything is now on the cloud, which basically means that it is remote. It's not resident on your laptop or your desktop. तो सॉफ्टवेयर जो आप यूज कर रहे हैं वो क्लाउड पे है, आप कोई वेबसाइट होस्ट कर रहे हैं वो क्लाउड पे है, आप कोई प्रोडक्ट होस्ट कर रहे हैं वो क्लाउड पे है, आपके सारा कम्युनिकेशन क्लाउड पे है। Everything is there, and that is what everybody needs to know, because that is precisely where all software resides, and how it navigates through the internet universe is an essential tool and understanding to have. चाहे वो AWS हो, Microsoft Azure हो, get the basics in place so that you can navigate through that. Finally, domain expertise. Domain expertise is not what you learned in college. Domain expertise is कि आपके specific domain में जो भी आपकी फील्ड है, what is it that's happening on the forefront of technology? ऐसा क्या चल रहा है जो शायद आप यूज नहीं कर रहे, बाकी लोग यूज कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, is transforming how the industry is shaping up, is making things faster, cheaper, better. You need to get there. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं, there are lots of tools now that will help you design that have nothing to do with, say, video editing, nothing to do with, say, email writing, nothing to do with engineering, specific to a field. Similarly, अगर आप एक civil engineer हैं, I am sure there are software pieces being generated right now which are changing the world of civil engineering. I don't know of them because I'm not a civil engineer. आपका फर्ज बनता है उसको पता करना and उसके अंदर समा जाना, so that with these 5 things in place, you build what is the mightiest punch to face technology upfront. विंडो ना बहुत छोटी है दोस्तों, 3 से 5 साल के अंदर अंदर काफी कुछ बदलने वाला है, एंड ऐसे मौके ना जिंदगी में बार बार नहीं आते हैं। मैं 45 साल का हूं, इसलिए बता सकता हूं, लास्ट ऐसा मौका 2008-2009 में आया था, when the iPhone was introduced and the entire smartphone revolution took the world over. उससे पहले इस देश में 1990s में आया था, when the software industry took over. तो 45 सालों में सिर्फ 2 बार ऐसे मौके मैंने पर्सनली अपनी जिंदगी में अनुभव किए हैं। This could be the first such moment for you if you are in your 20s. क्योंकि आपने वो स्मार्टफोन रेवोल्यूशन तो देखा ही नहीं. You were born into the smartphone revolution and you have no idea what the IT industry was about because now you are the dead recipient of it. But this is your moment. अगर 3 से 5 सालों में आपने अपने माइंडसेट को चेंज करके अपने पूरी शिद्दत के साथ ये ट्रांसफॉर्मेशन अपना ली, you will set yourself up for success for the rest of your life. You will earn so much, you will experience so much, you will gain so much that you yourself will be shocked when you look at yourself every year. That is what I will wish for you. ये अंकुर वारिको का official YouTube careers channel और मैं हूं अंकुर वारिको. Signing off. I'm super thrilled to announce my new latest project, India Genius Challenge. ये एक nationwide hunt है भारत के brightest young students का, aged between 13 to 15 years. एक online round followed by the national finals that will happen in Delhi, जहां सबसे brightest students को मिलेगी
10 लाख रुपए की स्कॉलरशिप। ऑनलाइन राउंड्स में डेली, वीकली, मंथली विनर्स अनाउंस होंगे। उनको मिलेंगे आईफोन्स, आईपैड्स, PS5s, बुक्स, ट्रॉफीज, सर्टिफिकेट्स एंड अ लॉट मोर, ऑल लीडिंग टू द नेशनल फाइनल्स हैपनिंग इन दिल्ली। प्लीज, अगर आप किसी 13 से 15 साल के बच्चे को जानते हैं, आपके परिवार में कोई है या आप खुद वो हैं, then log on to indiageniuschallenge.com and start playing the challenge.